নমস্কার প্রিয় দর্শক বন্ধু, আপনাদের সঙ্গে আমি গৌরাঙ্গ, জঙ্গলমহল এনজিও টিভি বাঁকুড়া থেকে। পশ্চিমবঙ্গের রাজনৈতিক ময়দান এখন উত্তপ্ত। রাজ্য জুড়ে জোর কদমে চলেছে বিজেপির পরিবর্তন যাত্রা। একের পর এক জেলায় কেন্দ্রীয় ও সর্বভারতীয় নেতৃত্বের উপস্থিতি ঘিরে বাড়ছে রাজনৈতিক তরজা। পাল্টা আক্রমণ, প্রতি আক্রমণ, পরিবারতন্ত্র থেকে অনুপ্রবেশ, চাকরি থেকে সপ্তম পে কমিশন, বিভিন্ন ইস্যুতে সরব গেরুয়া শিবির। চলুন এক নজরে দেখে নেওয়া যাক কোথায় কি বললেন বিজেপি শীর্ষ নেতারা। উত্তরবঙ্গের কোচবিহারে রাসমেলা ময়দানে সভা করেন বিজেপির সর্বভারতীয় সভাপতি নিতিন নবীন। তার সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন শ্রমিক ভট্টাচার্য, নিশীথ পরামানিক। সভা থেকে নিতিন নবীন বলেন, ইসলামপুরের নাম ঈশ্বরপুর করা হবে। এই মন্তব্য ঘিরে ইতিমধ্যেই শুরু হয়েছে রাজনৈতিক বিতর্ক। इस्लामपुर है ना, क्या बनाना है इसको? एक बार इस्लामपुर को ईश्वरपुर बदलने के लिए भाजपा की इस परिवर्तन यात्रा का शंखनाद कीजिए। आपकी अपनी सरकार बनेगी, इस्लामपुर अब नहीं रहेगा, ईश्वरपुर बनकर आएगा और वो सपना आपका साकार होगा। यह पवित्र भूमि जो अपने राजभोगिन समाज के महान समाज सुधारक ठाकुर पंचानन वर्मा जी की विचारों की गूंज, बंगाल के अंतिम हिंदू राजा महाराजा लक्ष्मण सेन जी की शौर्य की माटी, महान क्रांतिकारी पूर्णचंद्र दास जी के बलिदान की इस तपोभूमि को ईश्वरपुर बना के रहेंगे। ये संकल्प के साथ ये परिवर्तन यात्रा शुरू कर रहे हैं। आज पूरे बंगाल के एक कोने में हर जनता के मन में जो आग सुलग रही है, हर पश्चिम बंगाल का एक एक व्यक्ति जिस आवाज के साथ अपने सीने में जिस आग को दबा के रखे हुए हैं, वो आग है परिवर्तन का, परिवर्तन का, परिवर्तन का। পশ্চিম বর্ধমানের কুলটিতে সভা করেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী স্মৃতি ইরানি, অন্নপূর্ণা দেবী এবং প্রাক্তন রাজ্য সভাপতি দিলীপ ঘোষ। তারা রাজ্যের শিল্প, শিক্ষা, কর্মসংস্থানের পরিস্থিতি নিয়ে প্রশ্ন তোলেন। হাসানে উপস্থিত ছিলেন অভিনেতা মিঠুন চক্রবর্তী এবং মহারাষ্ট্রের উপমুখ্যমন্ত্রী দেবেন্দ্র ফডনবিস। আমতায় সভা করেন প্রতিরক্ষা মন্ত্রী রাজনাথ সিং এবং শ্রমিক ভট্টাচার্য। রাজনাথ সিং বলেন, পরিবারতন্ত্রের রাজনীতি বাংলায় চলবে না। मेरे बंगाल के बहनों भाइयों, मैं जानता हूं बंगाल की धरती, बंगाल की मिट्टी, यहां की मिट्टी में बलिदान है, यहां के मिट्टी में स्वाभिमान है और हालात आज ऐसे हैं। अब यहां मैं देख रहा हूं आप लोगों का उत्साह कि मैं कह सकता हूं कि बंगाल की धरती से ही अब परिवर्तन का ऐलान है मेरे बहनों भाइयों। और मैं कहना चाहता हूं अब परिवर्तन का समय आ गया है। बंगाल के मेरे बहनों भाइयों, अब चूकना मत। और आज की यह जो रैली है, मैं इसे केवल एक चुनाव की रैली के रूप में नहीं देखता हूं। मैं मानता हूं कि बंगाल में परिवर्तन की यह रणभेरी है। आज की यह रैली, यह सिर्फ सभा नहीं है, बल्कि यह परिवर्तन का एक संकल्प है। इस परिवर्तन का यह संदेश है। साथियों, आज बंगाल की धरती पुकार रही है, अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। भारतीय जनता पार्टी आनी चाहिए और टीएमसी पश्चिमी बंगाल से जानी चाहिए। यह पश्चिमी बंगाल पुकार रहा है। अब टीएमसी का अत्याचार नहीं चलेगा। और मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता होने के नाते पश्चिमी बंगाल की जनता को विश्वास दिलाकर जाना चाहता हूं। बहनों भाइयों, मैं देखूंगा, हमारी सरकार देखेगी पश्चिमी बंगाल की, कौन मां का लाल है जो किसी के ऊपर जुल्म और अत्याचार ढाएगा, कौन किसी मां बहन के साथ कोई छेड़छाड़ करने की जरूरत करेगा। यदि किसी ने यह जरूरत की बहनों भाइयों, तो उसकी खाट खड़ी कर दी जाएगी। ऐसी सरकार होगी हमारी भारतीय जनता पार्टी। সন্দেশখালীতে সভা করেন শিবনাথ চৌহান। সেখানে আইন শৃঙ্খলা ও নারী নিরাপত্তা ইস্যুতে সরব হন তিনি। নদিয়ার কৃষ্ণনগর ও নবদ্বীপে সভা করেন বিজেপি রাজ্য সভাপতি
সুকান্ত মজুমদার। তিনি অভিযোগ করেন, রাজ্যে পরিবারতন্ত্র কায়েম করার চেষ্টা চলছে। দিদি ভাইপোকে মুখ্যমন্ত্রী করতে চান, এই পরিবারতন্ত্র ভেঙে ফেলতে হবে। সমীর ভট্টাচার্য বলেন, ফর্ম 7 জমা না দিলে এসআইআর সম্পূর্ণ হবে না, এসআইআর না হলে ভোট নয়। মুখ্যমন্ত্রী আজ বাংলাদেশে অনুপ্রবেশকারীদের আটকানোর জন্য কলকাতার রাস্তায় ধর্নায় বসে যাবেন। উনি ধর্মতলায় বসতে পারেন, মঙ্গল গ্রহে বসতে পারেন, আন্টার্কটিকায় বসতে পারেন, যেখানে যুদ্ধ লেগেছে ইরানে গিয়েও বসে পড়তে পারেন, কিন্তু এসআইআর হবেই। নো এসআইআর নো ভোট, নো এসআইআর নো ভোট। পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর কে সম্পূর্ণ করতে হবে, মাঝ রাস্তায় বন্ধ করে দেওয়া চলবে না। এই যে হাওড়ার বিভিন্ন জায়গায় বিজেপি কর্মীদের হাত বিএলএ 2 কাছ থেকে ফর্ম 7 কে কেড়ে জ্বালিয়ে দেওয়া হয়েছে, পথ অবরোধ করা হয়েছে, টায়ার জ্বালানো হয়েছে, বিডিও অফিস ভাঙচুর হয়েছে, এসডিওর অফিসে আক্রমণ হয়েছে, বিজেপি কর্মীদের মিথ্যা মামলায় জেলে ঢোকানো হয়েছে এসআইআর কে কেন্দ্র করে। ফর্ম 7 জমা নিতে হবে। বিজেপি আমাদের অভিযোগকে না শুনে, শুনানি শেষ না করে আজকে পশ্চিমবঙ্গে এসআইআর এর প্রক্রিয়া শেষ করা যাবে না। কিছু মানুষের ভুল ভ্রান্তি বছর নাম কাটা গেছে বলছেন, তারা বিক্ষোভ করছেন। যারা বিক্ষোভ করছেন তাদের গিয়ে বলুন বিএলওর কাজ কারা করেছে, এই আরো কারা ছিল। তৃণমূল কংগ্রেস কাদের ঢুকতে দেয়নি বিভিন্ন অফিসের কাছে, পরিকল্পিতভাবে বিজেপির বিএলএ 2 এর নাম দিয়ে ফলস ডকুমেন্টকে আপলোড করেছে তৃণমূল কংগ্রেস বিভ্রান্তি তৈরি করবার জন্য। এর অবসান পশ্চিম মেদিনীপুরের গড়বেতা এবং ঝাড়গ্রামে সভা করেন বিরোধী দলনেতা শুভেন্দু অধিকারী এবং কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ধর্মেন্দ্র প্রধান। সভামঞ্চ থেকে রাজ্য সরকারের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ শানিয়ে তারা দাবি করেন, পরিবর্তনের হাওয়া বইতে শুরু করেছে গ্রাম বাংলায়। শুভেন্দু অধিকারী বিশেষ করে এসআইআর ইস্যুতে বলেন, এখন যাচাই চলছে, ভুয়ো নাম বাদ পড়বে, প্রয়োজনে ডিপোর্ট করাও হবে। শুভেন্দু অধিকারী দাবি করেন, 58 লক্ষ নাম যাচাই হয়েছে, আরও 1 লক্ষ টাকা হচ্ছে, অনুপ্রবেশকারীদের চিহ্নিত করে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে। আপনারা সাহস রাখুন, এবারে নরেন্দ্র মোদীজির নেতৃত্বে পরিবর্তন আসন্ন। ব্রেকফাস্টে গেছে 58 লাখ, লাঞ্চে গেছে 7 লাখ, এবারে ডিনারে বাংলাদেশি মুসলিম অনুপ্রবেশকারী ভাগো 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 ভাগো, একটাও থাকবে না। এখন তো ডিটেক্ট হচ্ছে, সাপ্লিমেন্ট ভোটার লিস্টে ডিলিট হবে। বিজেপি এপ্রিল মাসে আসবে, 550 কিলোমিটার বেড়া দেব আর ডিপোর্ট করব। সাতক্ষীরা চলে যা, নোয়াখালী চলে যা, খুলনা চলে যা, যেদিক দিয়ে এসেছিস ওই রাস্তা দিয়ে পালিয়ে যা। আর হিন্দু শরণার্থী ধর্ম বাঁচাতে যারা এসেছেন, মোদিজি আছে, সিএ দিয়েছেন। 2024 31 ডিসেম্বর পর্যন্ত খালার পুলিশ হাত দিতে পারবে না কোন হিন্দু শরণার্থীর গায়ে, বাকিটা আমরা করে নেব। নিশ্চিন্তে থাকুন যারা হিন্দুরা শরণার্থী হয়ে এসেছেন। দক্ষিণ 24 পরগনার মথুরাপুরে সভা করেন কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রী অমিত শাহ। তার সঙ্গে ছিলেন সুকান্ত মজুমদার। অমিত শাহ একাধিক বড় ঘোষণা করেন, চাকরি প্রার্থীদের বয়স 5 বছরে ছাড়, 3.5 লক্ষ শূন্যপদ দ্রুত পূরণ, 45 দিনের মধ্যে 7ম পে কমিশন চালু, সিএ কার্যকর হলে হিন্দু শরণার্থীদের নাগরিকত্ব নিশ্চিত। তিনি আরো বলেন, বাংলাদেশ ও পাকিস্তান থেকে আসা হিন্দু শরণার্থীরা এতদিন নাগরিকত্ব পেয়ে যেতেন যদি রাজ্য সরকার বাধা না দিয়ে দিত। युवाओं के लिए भाजपा अच्छा समाचार लाई है। दिसंबर 2026 तक सभी रिक्त खाली पड़े सरकारी पदों को युवाओं को
घूस लिए बगैर नौकरी देकर भरने का काम भारतीय जनता पार्टी करेगी। उन्होंने ढेर सारे स्थायी पद रद्द कर दिए हैं। भाजपा सरकार बना दीजिए, 2 ही माह में हम सारे खाली पद और बंद करे, रद्द करे पदों की भी भर्ती करने का काम करें। और कई सालों से भर्ती नहीं हुई है, युवाओं की उम्र चली गई एग्जाम देने की, जिसमें हमारे बंगाल के युवाओं का कोई दोष नहीं था। मैं आज बताने आया हूं, भाजपा सरकार बनने के बाद युवाओं को नौकरी की आयु में 5 साल की मुक्ति भी दी जाएगी। देश भर की सरकारों के सरकारी कर्मचारियों को 7वां वेतन आयोग मिल चुका है। सिर्फ बंगाल के कर्मचारियों को ही 6ठा वेतन आयोग का तनख्वाह मिलता है। अब तो 8वां वेतन आयोग मिलगा बनने आया। ममता दीदी ने सरकारी अधिकारियों को 7वां वेतन आयोग नहीं दिया है। मैं आज कहकर जाता हूं, सभी लोग भाजपा सरकार बना दो, 45 दिन में ही हम 7वां वेतन आयोग की तनख्वाह देने का काम करें। उन्होंने सीएए का विरोध किया। अगर ममता बनर्जी सीएए का विरोध न करती तो एक एक बांग्लादेशी शरणार्थी को आज नागरिकता मिल गई हो। मगर मैं सभी हिंदू शरणार्थियों को कहने आया हूं, आपको चिंता करने की जरूरत नहीं है। ऊपर भाजपा सरकार है, एक भी हिंदू शरणार्थी की नागरिकता नहीं जाने वाली। बंगाल एक सीमांत राज्य है, बहुत बड़ी लैंड बॉर्डर है। इसकी सुरक्षा ये तृणमूल कांग्रेस की सरकार नहीं करती। इन्होंने बेरोक टोक घुसपैठियों को घुसाया है। अभी तो सिर्फ उनके नाम कट रहे हैं, फिर भी ममता दीदी के पेट में गुड़ 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 होने लगा है। ममता दीदी धैर्य रखो, सिर्फ नाम काटना नहीं, भाजपा सरकार आने के बाद एक एक घुसपैठिए को चुन चुन कर बंगाल के बाहर निकालने का। जो बहनों, कमल फूल की सरकार ला दो, ममता बनर्जी के गुंडों को हम उल्टा लटका कर सीधा करने का काम, एक एक को चुन चुन कर जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा। और मैं आज कहने आया हूं, जिन्होंने अपने परिवारजन गंवाए हैं, वो सभी को आपका परिवार का जो नुकसान हुआ है, वो नुकसान करने वालों को जेल की सलाखों के पीछे भारतीय जनता पार्टी की सरकार। अभी अभी बंगाल का बजट विधानसभा में पारित हुआ। साइंस और टेक्नोलॉजी, जिससे रिसर्च एंड डेवलपमेंट होता है, राज्य का विकास होता है, इसके लिए ममता दीदी ने 80 करोड़ रुपया दिया। और मदरसाओं के लिए 5,700 करोड़ रुपया देने का काम किया है। 5,700 करोड़। कोई आपका बच्चा बच्ची मदरसा में पढ़ रहा है भैया? और बताओ, शिक्षा भर्ती का घोटाला किसने किया? जोर से बोलो, किसने किया? एसएससी घोटाला किसने किया? नगर निगम भर्ती घोटाला किसने किया? गाय तस्करी का घोटाला किसने किया? पीडीएस राशन का घोटाला किसने किया? मनरेगा घोटाला किसने किया?
पीएम आवास योजना में घोटाला किसने किया? ये भाईपो कहते हैं। एक नाम बताए भ्रष्टाचार का। पार्थ चैटर्जी, ज्योति प्रिय मलिक, अनुव्रत मंडल, जीवन कृष्ण साहा, माणिक भट्टाचार्य, अजीत मैती, मदन मित्रा, चंद्रनाथ सिन्हा, परेश पाल, कुंतल घोष, अराबुल इस्लाम, फिरहाद हकीम, शोभन चैटर्जी, कुणाल घोष, रजत मजबूदार, सोहराब अली, ममता दीदी, ये सारे आपके साथीदार जेल जा चुके हैं, जेल जा चुके हैं। নমস্কার, আপনাদের সঙ্গে আমি গৌরাঙ্গ, জঙ্গলমহল এনজিও টিভি বাঁকুড়া থেকে।